अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अनदर एपिसोड ऑफ डेली डोज ऑफ गुलमोहर। आज हमारे साथ बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान हैं। हमारे साथ सर साकिब हैं, दी फेमस केमिस्ट्री टीचर। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर आपसे अल्लाह का शुक्र, आपसे कुछ सवाल करने हैं सर हमें। जी प्लीज़। सर सबसे पहला सवाल, आपने केमिस्ट्री एज योर प्रोफेशन चूज़ किया, तो आपकी कोई और प्रोफेशन थी, कोई आपकी और साइड थी, डायरेक्शन थी जिसमें आप जाना चाहते थे, या केमिस्ट्री ही थी? अच्छा, this is a long story. I'll cut it short. I started off as an engineer. मैंने mechanical engineering की. I started working in textile sector. The last job I was doing in my textile sector was working for Asgard 9. It's a denim manufacturing unit. It makes jeans for really nice brands like Diesel, Banana Republic, True Religion, 70s for All Mankind. So I used to work for their Turkish office. उनका एक टर्की में ऑफिस था जहाँ से वो we used to go to our European customers for selling our jeans. So that was the job I was doing for 8-9 years. So I have two brothers. So both of them live in England. So my family wanted me to be back in Islamabad with them. So I left my job, came back to Pakistan to live with my family. Then it's 12 years back. So that's when I thought कि यार staying idle at home doesn't work. तो फिर मैंने teaching शुरू की. I came to Head Start. Ma'am Nazneen, I asked Ma'am Nazneen if I can teach math or physics because this is something as an engineers we do. Like, and she wanted me to do chemistry. So I have to not only teach chemistry but study chemistry as well. I again did a bachelor's in chemistry, a 4 years program. And here I am. इसके साथ साथ how did you manage to come into teaching? कोई inspiration towards teaching या? अच्छा, छोटे होते से I think I had this in me that I love teaching. I love learning. मुझे चीज़ें सीखने का भी शौक था, even if they didn't concern me. फिर मुझे बहुत शौक था सीखने का. तो I think it was a natural choice once I knew कि मैं इंजीनियर और डॉक्टर्स तो ऑब्वियसली बनते हैं ना कि आपके पेरेंट्स की भी आपके लिए आपसे एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं. सो इन आवर टाइम्स हमारे पेरेंट्स यही समझते थे वेल यू आर सक्सेसफुल इफ यू बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर. तो वो इंजीनियर हम बन गए, लेकिन आई थिंक देयर वाज समथिंग इन मी जो व्हिच वांटेड टू टीच. So that's why I really love teaching. So the choice I made the second time was to do what I love to do. So Is something about teaching that inspires you a lot, या जो आपको बहुत पसंद है पढ़ाते हुए? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि देखो मैं आई सिट डाउन विद माय फेलोज. मेरे फेलोज आर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो आज मैं जब उन्हें बताता हूँ ना कि यार आई हैव सैटरडे संडेज ऑफ, Friday is like a half day. I get 2 months off in summers. I get 2 weeks off in winters. I get a spring break for a week. I mean, the thing I didn't like about job was the same work you have to do every day. आप रोजाना आते हैं, एक ही काम आपने करना होता है. वो आप fed up हो जाते हैं. For how long can you do something every day? You can't. But when you're teaching, the thing which has inspired me the most was every year is a new year. New people, new faces, and new interactions. So I think teaching has kept me young. So the energy these students have, so I kind of feel that energy. आज भी मेरे fellows मुझे कहते हैं कि यार you haven't aged. मुझसे age नहीं हुआ because I live with young people. मैं young लोगों के साथ रहता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, inspire होता हूँ, and I kind of get that energy from them. So yeah, that's what makes teaching a bit different from other professions. In these years जो आपने teaching की है उसमें is there any most memorable moment आपका teaching करते हुए? Well, there are many memorable moments, or I think every year you come across incidents, good experiences as teachers. जो अगर आप मेरे से ये पूछें कि what's the most memorable part, तो there was a girl recently. This is just a recent occurrence. कि a girl came from Afghanistan to Kuwait. तो I am a Persian speaker. मैं Persian बोल सकता हूँ. I learned Persian.
तो when she came, तो I think I can't forget the expressions on her face when she asked a question and I answered in Farsi and she was like shocked. And how do I know this? तो वो भी बड़ा अच्छा experience था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि so interacting with her, it was one of the few experiences where she felt really singled out, like not having a lot of friends, but she became really good friends with me, and I still cherish my student, and it was a really good experience last year. And what I also want to mention is that the very first year when I came, so there was a student, his name was Hashim. So a brilliant student. I think one of the few examples where I remember somebody getting into Aga Khan from Head Start. तो हम लोग केमिस्ट्री लैब में एंटर हुए, तो this was the first day. So there was a very expensive equipment. वो बड़ी एक हमारे पास एक burette थी, वो बड़ी expensive burette थी, and वो हम सिर्फ यूज़ करते थे demonstration के लिए. तो the first and the only thing which broke during the experiment was that burette. So for some reason, whenever something breaks in the chemistry lab, it's the most expensive equipment which breaks. For some reason, that has happened to me many times. Yes. So, and आप जो यहाँ पे you're teaching IG2, AS and A2, इनमें से if we talk about the batch जिसका आपको लगता है कि more of a lost cause, कोई direction नहीं है. Well, ये तो आपने बड़ा एक क्वेश्चन पूछा. आई डोंट नो आप ये यू वांट दिस फीडबैक ऑन कैमरा, लेकिन जो आपकी क्लास है ना IG2 की, इसके हालात बहुत ख़राब है. वेरी सिचुएशन इज़ वेरी बहुत ख़राब, और हालात मतलब इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये क्लास क्या करेगी. लाइक 30% स्टूडेंट्स जो हैं दे एंडेड अप फेलिंग देयर कोर्स. जी, दे फेलिंग देयर कोर्स. तो मैं बड़ा disappointed हूँ इस IG2 के रिजल्ट से कि ये क्या कर रही है, and where will they end up. AS seems fine, AS ठीक है, because ये थोड़े से mature हो जाते हैं ना, तो A2 जो है वो फिर properly mature हो जाते हैं और वो अपने रिजल्ट्स वगैरह पे भी टेक केयर करते हैं. वैसे it's a bit natural. IG2 में लोग थोड़े से सीरियस नहीं होते हैं, they don't know the gravity of the situation, but once they get into AS they really know what they are doing. हाँ, तो पता चल जाता है. So आपने जो भी मिड टर्म्स बनाए हैं, आई थिंक यू नो कि मोस्ट ऑफ द किड्स दैट गेव दोज मिड टर्म्स वो काफ़ी परेशान रहे, उनकी रातें आराम से नहीं गुजरी, टेंशन में गुजरी हैं. तो आपका उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, आई फील वेरी ऑनर्ड कि लोग मेरी वजह से रात को सो नहीं सकते हैं. आई फील वेरी हैप्पी ऑनर्ड कि यार अच्छा लोग सो नहीं सकते हैं, तो यार आई नीड टू मेक श्योर दे डोंट स्लीप. तो अच्छा, व्हाट वाज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज आपने जो मिड टर्म पेपर बनाया उसकी वजह से काफ़ी बच्चों की रात की नींदें खराब हो गई. या दैट्स ट्रू. आप कैसा महसूस करते हैं इसके बारे में? अच्छा, मैं महसूस कर सकता. आई फील वेरी हैप्पी. मुझे बड़ी खुशी होती है जब मुझे कोई ये आके कहता है कि बिकॉज ऑफ यू आई कुडंट स्लीप, बिकॉज ऑफ यू दिस हैज हैपेंड, एंड आई एम लाइक हाँ अच्छा, फाइनली आई एम इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स लाइफ. तो ये मेरे लिए एक बड़ा ऑनरेबल मोमेंट है टू मेक लाइफ मिजरेबल फॉर द स्टूडेंट्स. एंड इन स्टूडेंट्स में से इफ़ यू थिंक कि सबसे अच्छा बैच जो है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा, वो कौन सा? वेल, यू विल बी सरप्राइज्ड कि डिफाइनिंग व्हाट ब्राइट फ्यूचर मीन्स. इफ यू मीन ब्राइट फ्यूचर मीन्स के educational achievements, so I think I just have a feel that this time around the AS batch that's going to do something. ये कुछ करेगा, because when I asked them, I think 60 or 70% of the students have A stars in their subjects coming from O levels. तो there is a feel कि ये जो है ना ये कुछ bright होगी और कुछ जो है ना वो different करेगी. सर, इसी बैच में से काफ़ी बच्चे हैं they got bad grades like below 60% और इस तरह भी हैं, तो उसमें से what do you expect कि उनके अपकमिंग जो CIs होंगे, how would they perform in that? अच्छा, ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि हम जब पेपर्स बनाते हैं ना, तो एक स्ट्रेटजी ये होती है कि यू मेक श्योर दैट नोबडी गेट्स गुड मार्क्स इन देयर मिड टर्म्स और इन देयर मार्क्स. इसलिए कि टू कीप द स्टूडेंट्स ऑन देयर टोज. इसका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को इफ यू गिव देम, इवन इफ द स्टूडेंट इज गेटिंग अ गुड ग्रेड,
you need to be strict on them. Make sure that they keep on working rather than कि आप उनको एक grade दे दें और वो कहें चलें हमारा को grade आ गया let's stop studying तो ये सब करना. So you need to make sure कि you need to make sure that the students are on top of their toes. वो हर वक्त अपने काम में मसरूफ हैं. So इसलिए papers को extraordinarily hard बनाना that's very important कि आप students को challenge करें. Challenge the students. Is the whole point. Yes. और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि the grades the school gives are based on school standards. Like over here 90% is an A. But when you look at A levels and their actual marks they get and the thresholds, 65 to 70% is an A. तो yes, अच्छी बात ये होती है कि you make the papers as hard as you can till the marks, ताकि students in their actual exams perform well. Exactly. सर आपने जैसे पहले क्वेश्चन में बोला था कि आप पर्शियन बोल सकते थे, आपने कम्युनिकेट किया पर्शियन में. Yes. हाउ कैन यू मैनेज टू स्पीक पर्शियन? कैसे? अच्छा, I was grade 9 I think. It was grade 9. तो हमारे घर के साथ ना एक ग्राउंड था. वहाँ पे जो ये पर्शियंस थे, ये बैठ के चेस खेला करते थे. तो मैं वहाँ पे जाके बस खड़ा हो जाता था और जाके बस देखता रहता था ये क्या कर रहे हैं. I didn't know वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं आता था कुछ भी. But to be really honest, standing there 3 months, मुझे कभी किसी ने कुछ नहीं सिखाया. मैं सिर्फ वहाँ बैठ के उनकी बातें सुनता था. ऑब्जर्व करता था ये क्या बात कर रहे हैं और ये क्या खेल रहे हैं. Nobody taught me chess, nobody taught me Persian. मैं बस उनको ऑब्जर्व करता देखता रहता. तो one day I think 2-3 महीने के बाद one day I went तो वहाँ कोई भी नहीं था. There was only one Baba sitting and he was like फारसी फॉर्मीदी. मैंने उसको कहा फॉर्मीदान. उसने कहा So I sat down. He said, "याद फारसी गिरफ्त, याद चेस याद गिरफ्ती." तो मैंने कहा गिरफ्तान मगर कम गिरफ्तान. उसने कहा चलो आओ खेलो मेरे साथ. First game, I beat him. पहली गेम उसको मैंने अपनी पहली गेम खेली. He was a very good player. तो मैंने उसको हारा क्योंकि मुझे पता था ये क्या, मुझे इतना याद था कि इसने फर्स्ट मूव किया ये सेकंड यही करेगा. I knew कि वो कौन सी गेम्स हार चुका है. तो देर आई एक्चुअली रियलाइज्ड कि आई हैव अ वेरी गुड मेमोरी. मैं चीज़ों को लाइक अगर आप चेस खेल रहे हैं ना, यू हैव मेड 30 मूव्स और एकदम चेस बोर्ड आप गिर जाता है. आई कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट मूव टिल द मूव जहाँ तक वो गेम है. मुझे जीरो से मुझे एक मूव याद होती थी. पोजीशन मुझे वो सारी याद होती थी. 3 days आफ्टर इवन इफ यू आस्क मी प्लेस द पीसेस वो मुझे याद होते थे. सो दैट्स हाउ आई एंडेड अप लर्निंग पर्शियन. वैसे एक पर्शियन के बारे में आपको एक बात और बताऊँ. If you really know your Urdu, अगर आपको उर्दू ठीक तरह से बोलना आती है, you can easily learn Persian because Persian is the mother of Urdu. Exactly. Yes. Same dialect. Learning that it's not difficult. Actually, when you stand there and when they keep on speaking, तो वो and their actions, वो जब वो बोलते हैं और उनके actions वो आपस में match करना शुरू हो जाते हैं and you kind of understand अच्छा है इस लफ्ज़ का ये मतलब. Coming back to academics, sir, आपका ये जो current AS batch है, इसमें से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अपनी एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा कमिटेड है एक्सेप्ट फरदान? फरदान इज अ लॉस्ट कॉज. ही हैज नथिंग एल्स टू डू. ही इज एक्चुअली उसकी ज़िंदगी में जो है कोई काम नहीं है. मैंने कहा है दैट यू शुड ट्राई टू गेट टू डू समथिंग एल्स इन लाइफ एज वेल अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग. आई हैव एनकरेज्ड हिम एक्चुअली टू बंक क्लासेस बट ही हैज नेवर बंक द क्लास. तो मैं उसे इनकरेज करता हूँ कि वो थोड़ी शरारतें किया करें लेकिन ही डजंट. उसकी तो बस आई थिंक लाइफ इज जस्ट अराउंड स्टडीज. या well, apart from that, you're asking me, is there anyone else who I expect to? Well, there are a number of students. I think Rida Usman is another student to look up to. She did really good in her exams, and Haider Durrani is one person I would like to mention. Ibrahim Vardak, that's another character, and Ibrahim Shah, another person to look up to, that he's going to be scoring good. So these are the few students I think are going to जो कुछ ना कुछ करेंगे कुछ ना कुछ. और फिर जो हैं जो कुछ नहीं करेंगे उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? जो कुछ नहीं करते कमाल करते हैं. ठीक है, तो वो जो कुछ नहीं कर रहे वो कमाल कर रहे हैं. एक्चुअली जो उस क्लास के जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनको आई लाइक टू कीप देम वेरी क्लोज टू मी. बहुत करीब है मेरे से. So usually this happens every year. The ones who get good grades are the ones who get good grades.
And the one who fail are the ones who become my friends, जो मेरे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कुछ हम कर तो सकते नहीं है, जो उससे साकिब के दोस्त बन जाते हैं. तो yeah, it happens every year. जो बहुत brilliant students होते हैं वो तो अच्छे होते ही हैं, तो बहरहाल जो नहीं brilliant होते हैं वो मेरे best friends होते हैं at the end of the session. सर एक और हमारा बड़ा अच्छा सवाल है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी जी. आपकी एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन के बारे में. Okay. नॉर्मली आयन होता है और आप उसे ऑइन बोलते हैं. Oins. तो ये एक क्वेश्चन है कि ये आप क्यों करते हैं? यार आपने बड़ा अच्छी बात पूछी, मैं ऐसे क्यों करता हूँ. अब देखें, एक वर्ड है स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब उस दिन मैं टेलीविजन पे बैठा देख रहा तो देयर वाज अ बड़ा अच्छा साइंटिस्ट था वो. उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोला, उसने बोला स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब जब उसने ये बोला तो मैंने कहा यार दिस वर्ड इज मेकिंग एन इम्पैक्ट. तो दैट्स sometimes when I am listening to videos, I look at a lot of videos. तो वहाँ पे अगर मुझे कोई इंटरेस्टिंग इम्पैक्टिंग वर्ड लगे ना, कि कोई डिफरेंट तरह से, like for example an English name is Anna, you can pronounce it as Anna, you know, that sounds a bit different, थोड़ा सा intriguing लगता है. तो आई थिंक मुझे ये अच्छा लगता है लोगों को थोड़ा सा इंट्रीग करना कि यार अच्छा इसका तो ये प्रोनाउंसिएशन है, सर ये बोल रहे हैं. तो वो जो इंट्रीगिंग बात होती है ना वो आपको याद रहती है. सो आई थिंक दैट्स लाइक अ सिग्नेचर मूव ऑफ अ पर्सन. तो आई थिंक थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो इसलिए बोल देता हूँ. वैसे आप क्या ठीक रहे हैं, इट्स आई एम. अच्छा सर, हम रैप अप करते हुए एक लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कोई ऐसी एडवाइस जो किसी स्टूडेंट को देना चाहें. हाँ. कोई बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस. देखें, दिस इज समथिंग ऑन अ सीरियस नोट आई वुड लाइक टू से कि वर्ल्ड इज चेंजिंग एंड इज चेंजिंग रैपिडली. यू नीड टू एक्चुअली फोकस ऑन कि जो मैं करने लगा हूँ 10 years down the road इसकी क्या वैल्यू रह जाएगी. लाइक फॉर एग्जाम्पल पीपल डूइंग एसे राइटिंग और पीपल डूइंग हिस्ट्री और जोग्राफिया और लॉ इवन. आपको पता चलेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोना रिप्लेस ऑल दीज प्रोफेशंस, एवरीथिंग. तो जो भी आप कर रहे हैं आप इंश्योर करें इस बात को कि जो आप कर रहे हैं उसका 10 years के बाद क्या फ्यूचर है. सेकेंडली अपनी लाइफ में स्किल सीखें. ये जो होता है ना नॉलेज, जिसको आपके ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, वेल ये तो आप किसी पैरट को भी सिखा सकते हैं. तो आइंस्टाइन ने ये कहा था, बड़ी मशहूर बात कही थी कि इट्स नॉट द नॉलेज विच मैटर्स, इट्स द इमेजिनेशन विच मैटर्स. आपको ये पता है कि ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, डजंट मीन दैट यू आर ब्रिलियंट. इट्स जस्ट इन्फॉर्मेशन विच यू कैन गेट फ्रॉम योर आईफोन नाउअडेज. तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी लाइफ में कुछ स्किल सीखें. I'll give you some examples of skill building. DNA extraction. आपको DNA extract करना. You can label DNA. आप crime scene को investigate कर सकते हैं. आप dyes को manufacture कर सकते हैं, बना सकते हैं. आप organic synthesis कर सकते हैं. मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको chemistry आनी चाहिए. मैं आपको कह रहा हूँ ये skills हैं, ये आपको आनी चाहिए. किस लिए? याद रखिएगा, the person who knows a skill, वो लाइफ में कभी भी उसको सर्वाइवल इश्यूज नहीं हो सकते, बिकॉज ही नोज अ स्किल. तो आप अपनी लाइफ में स्किल बिल्डिंग को प्रायोरिटाइज करें. एंड सेकेंडली जो भी प्रोफेशन है, थिंग्स आर चेंजिंग रेडिकली एंड दे विल चेंज इवन मोर इन द कमिंग टाइम. यू हैव टू बी 100% श्योर of what you pick as a profession in your future, because 10 years down the road that profession might be obsolete and you can't do anything about it because you have spent your life on that. तो आपको बहुत ज़रूरी है आप skill based काम करें. The best degree I would say to have, like for example nowadays लोग कहेंगे कि being an engineer and a doctor is an achievement. I would say getting a master's or a PhD in a pure sciences like chemistry or physics will be one of the most important degrees in the coming times. Yeah, बहुत important होगी. तो I would say कि इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें. Whatever you pick, do research. Get 10, 15, 20 years down the road, what do you expect this field to be? Exactly. चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और
बहुत अच्छी बातें रही, बहुत अच्छे सवाल रहे. थैंक यू सो मच जी. स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट एपिसोड्स. अल्लाह हाफिज़. चलो, that was a good interview. Okay guys, चलो we go.